Welcome to the lecture series on Computer Fundamentals and Programming in C. I am Vikas Swag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Postgraduate Nehru College, Jhajjar. So today we will study Chapter 1 Computer Fundamentals. So Lecture 2 की outline हमारी है Softwares, System Softwares, Application Softwares, Operating Systems and its function, Programming languages, language translators and classification of computers. So software. What is software? Software is a set of instructions or programs designed to perform a specific task. सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और एक प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करेंगे. सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. तो जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो कैसे मैनेज करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है. प्रोग्राम इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न टू सॉल्व ए पर्टिकुलर टास्क. प्रोग्राम क्या होगा? कुछ इंस्ट्रक्शंस की सीक्वेंस जिसके हेल्प से क्या करेंगे हम? एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 to 10. Software tells the computer what to do and how to do. Examples of software includes MS Word, media players like Windows Media Player, VLC, and many more are there. Games, photo editors, video editors, web browsers like Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Notepad, and there are many more software. Thousands of software are there. System software is used to start and run the computer system and networks. This include operating system, compilers, interpreter, assemblers. So these provide a basis for other software to run or for creating other softwares. Like operating system provides many functions for providing a environment to execute other application softwares. Now, what is application software? Application software are computer programs for performing user tasks such as Paint, MS Word, web browsers. All these are application software which runs over a operating system or a system software. Now let's discuss the difference between system software and application software. System software helps in operating the computer hardware and provides a platform for running the application software. Application software helps in the user in performing single or multiple related computing tasks. So what system software will do? It will provide a platform for running application softwares. The application software helps the user in performing single or multiple computing tasks. So these are application software designed for single task or it could be multiple tasks, but it provides a platform. System software executes in a self-created environment. So environment is not created for them. They create the environment itself. Application software executes in the environment created by system software. It executes continuously as long as the computer system is running. ये तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है. It executes as and when the user requires. जैसे कि हमें MS वर्ड यूज़ करना है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसको ऑन कर लेंगे सॉफ्टवेयर को, और जब हमें ज़रूरत नहीं होगी तो उसको बंद कर देंगे. प्रोग्रामिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर. क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. सो इट इज द प्रोग्रामिंग ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर. Programming of an application software is relatively easier and requires only the knowledge of underlying system software. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ने जो एनवायरनमेंट सेटअप किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हीं को फुलफिल करने के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसकी प्रोग्रामिंग काफ़ी ईजी होती है. देयर आर मच फ्यूअर सिस्टम सॉफ्टवेयर एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर काफ़ी कम हैं. देयर आर मैनी मोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे बहुत सारे हैं कम्पेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर. System software runs in background and users typically don't interact with them. सिस्टम सॉफ्टवेयर मोस्टली बैकग्राउंड में काम करते हैं और उनसे हमारे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता. ठीक है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या आता है? फ्रंट में हमारे ऑन स्क्रीन दिखाई देगा, उससे हम सारा मैक्सिमम काम हमारा परफॉर्म कर देते हैं. वेब ब्राउजर से तो वो हमारे सामने दिखाई देगा, वो सारा काम हम उसी के साथ करेंगे. उसमें विंडो खोल के कोई सर्च कर रहे हैं, कुछ वीडियोज़ देख रहे हैं, यूट्यूब सर्च देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो हमें उसमें सामने करेंगे. ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर. एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर: विंडोज ओएस, बायोस, डिवाइस फर्मवेयर, मैक ओएस, लाइनक्स, एंड्रॉइड ओएस. ऑल दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर
other apps, other softwares. Windows Media Player, Adobe Photoshop, VLC Player, MS Word, web browsers, Chrome, Opera, all these are application software which runs on a OS, operating system. Okay. Now, what is operating system? An operating system is an interface between computer user and computer hardware. So we can't directly access the hardware of a computer. So we need some software that allow us to interact with the hardware, so that we can use the hardware to maximum extent possible. So that is the software is called that interface is called operating system. So it acts as interface between human and hardware. An operating system is a software which performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices such as disk drive and printers. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है हमारा, हमारे शायद चीज़ों मैनेज तो करता ही है, साथ में जो एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, हमने यूएसबी में पेन ड्राइव लगा दिया, हार्ड डिस्क लगा दी, प्रिंटर अटैच कर दिया अपने, और क्या कर सकते हैं, कोई कैमरा लगा लिया, कोई माइक लगा दिया, तो सभी को उनको हैंडलिंग भी और कंट्रोलिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर. इट आल्सो प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. पहले हम पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो क्या करेगा ये, दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा. सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर इंक्लूड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, EIX, एंड्रॉइड एटसेट्रा. इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं. मेमोरी मैनेजमेंट, तो मेमोरी जो हमारी उसको कैसे मैनेज करेगा ये. प्रोसेसर मैनेज करेगा, CPU जो हमारे प्रोसेसिंग पावर्स हैं सारी, उसको कैसे प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करेगा मल्टीपल प्रोसेसेस में. डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स. ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे अभी. मेमोरी मैनेजमेंट. Memory management refers to management of primary memory or main memory. Main memory is large array of words or bytes where each word or byte has its own address. तो हम जब भी मैनेजमेंट की बात करेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट में करेंगे, तो मेमोरी हम सबसे पहले हम जाएंगे हमारा रैम पे फोकस, जो कि हमारी प्राइमरी मेमोरी है. उसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि वो लिमिटेड होती है. उसमें हमारा सिस्टम है, कोई 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, लेकिन हमें उसमें प्रोग्राम्स बहुत सारे चलाने होते हैं. आज हम एक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, दूसरा चलाएंगे. ठीक है, तो उस टाइम में पहले हम एग्जाम MS वर्ड खोल रखा है, एग्जाम पावर पॉइंट खोल रखा है, एग्जाम वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो उसको मेमोरी को मैनेज करना बहुत ही टिपिकल टास्क होता है. तो दैट इज़ द फर्स्ट टास्क. सेकेंडरी मेमोरीज और हार्ड डिस्क, उसमें हम जितना स्पेस है उतना डेटा डाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हमें 8 GB 4 GB जो भी रैम है हमारी, इसमें पूरे सिस्टम को ऑपरेट करना है, तो इसको मैनेजमेंट काफ़ी एफिशिएंट होना चाहिए. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कीप ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज बाय whom एंड व्हाट पार्ट आर नॉट इन यूज. कि कितनी मेमोरी है वो यूज़ में है, और कौन सा सॉफ्टवेयर उसको यूज़ कर रहा है, और कौन सी खाली है. ताकि अगर कोई नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं, किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं कि आई वांट टू स्टार्ट द VLC प्लेयर, कुछ भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं नई एप्लीकेशन, तो क्या होगा, तो उसको पता होना चाहिए कि इसको कहाँ पे मेमोरी में लोड कर, रैम में कहाँ पे लोड होगा ये प्रोग्राम, क्योंकि एवरीथिंग दैट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय सिस्टम फर्स्ट लोड इनटू द मेन मेमोरी. In multi-programming, the OS decide which process will get memory when and how much. और मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स हम मल्टीपल प्रोग्राम्स एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि किस सॉफ्टवेयर को कितनी मेमोरी मिलेगी, कब मिलेगी. अलोकेट्स द मेमोरी व्हेन प्रोसेस रिक्वेस्ट इट. जब कोई प्रोसेस मेमोरी रिक्वेस्ट करेगा तो उसको मेमोरी अलोकेट भी करेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम. डीलोकेट द मेमोरी व्हेन प्रोसेस नो लॉन्गर नीड्स इट और हैज़ बीन टर्मिनेटेड. जैसे कि MS वर्ड खोल रखा था, या मीडिया फाइल कोई वीडियो प्ले कर रहे थे, हमारी वीडियो पूरी हो चुकी है, तो हम वीडियो को बंद कर दें कोने से जाके. बंद करने के बाद जो उसकी मेमोरी है, जो मेरे रैम में उसका डेटा पड़ा था, उसको डीलोकेट कर देगा, एंड नाउ रैम इज अवेलेबल फॉर यूज बाय अदर प्रोसेसेस. प्रोसेसर मैनेजमेंट. अब प्रोसेसर क्या है हमारा, CPU में भी लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर्स हैं, तो हमें उससे क्या है, हमारे पास उससे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में 100 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं. तो अगर हमें एक टाइम पे 4-5 सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करने हैं, तो प्रोसेसर किसको कितना लोकेट हो, ताकि सभी हमारे एप्लीकेशन हैं प्रॉपर्ली ऑपरेट कर सकें, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलता रहे, ताकि हमारा सिस्टम हैंग ना हो.
तो उसके लिए क्या करें, प्रोसेसर को मैनेज करना पड़ा प्रॉपरली। जो काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स which process gets the processor when and for how much time. This function is known as process scheduling. मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो उनको कितने टाइम तक प्रोसेसर देना है और कब देना है, वो डिसाइड का काम किसका है, प्रोसेस शेड्यूलिंग का। कीप्स ट्रैक ऑफ द प्रोसेस एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस, वो चेक करे कौन सा प्रोसेस कितना कंप्लीट हो चुका है या किस स्टेज में है, उसके हिसाब से उसको टास्क और उसको प्रोसेस अलोकेट किया जाएगा। जैसे ये है, एक कोई जॉब क्यू है कि मल्टीपल जो जो प्रोसेस हैं, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे हैं वो वेट कर रहे हैं सीपीयू के लिए, ठीक है। यहाँ से क्यू में आएंगे, सीपीयू के पास गए। अब किसी को सॉफ्टवेयर में क्या हुआ, उसमें इनपुट आउटपुट मीन्स उसने कुछ डेटा रिक्वेस्ट किया कि मेरे को पहले ये फाइल रीड करनी है, उसके बाद ही मैं आगे चल पाऊंगा। तो इस यहाँ पे उसके लिए क्या हुआ, उसके सीपीयू से क्या किया, उसको प्रोसेसर को उसके छीन लिया गया, उसको इनपुट आउटपुट क्यू में डाल दिया। तो तब तक हमारा सीपीयू फ्री है तो दूसरे प्रोसेस को अलोकेट हो जाएगा। तो 1/1 हम सीपीयू को प्रोसेस को सीपीयू की जो पावर हमारी उसको सभी सॉफ्टवेयर में इक्वली और एज पर रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले क्या बोलेंगे, ट्रैफिक कंट्रोलर। अलोकेट्स द सीपीयू टू ए प्रोसेस, तो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को एक प्रोसेस को अलोकेट कर देगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स, और जब हमें ज़रूरत नहीं होगी तो उसको डीलोकेट कर देगा, और सीपीयू हमारा अवेलेबल है अदर प्रोसेसेस के लिए। डिवाइस मैनेजमेंट, अब जो डिवाइसेस हमारे सिस्टम से कनेक्टेड हैं उनको सभी को मैनेज करेगा। मैनेजमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, माइक्रोफोन, कार्ड रीडर, फ्लैश स्टोरेज डिस्क, सभी को मैनेज कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कीप ट्रैक्स ऑफ द ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट, प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, क्योंकि सारे डिवाइसेस इनपुट आउट डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं सारे, तो इनको कंट्रोल कौन करेगा, हमारा इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम, तो कुछ भी है कितने टाइम के लिए और कब, ये डिसाइड कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अलोकेट द डिवाइस एंड डीअलोकेट द डिवाइस, लोकेशन डीअलोकेशन मेमोरी की हो, डिवाइस की हो, प्रोसेसर की हो, सब कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ना फाइल मैनेजमेंट, ये देखो ऊपर फोटो है, हम नॉर्मल ऑफिस में, घर में, कहीं भी हमारे पास फाइल्स हैं, उसको प्रॉपर्ली कैसे मैनेज करते हैं, सेम तरह इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम अपने कंप्यूटर में फाइल्स को मैनेज करते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, ये फाइल सिस्टम नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन यूसेज। डायरेक्टरीज बोलते हैं फोल्डर्स को। These directories may contains files and other directories. This is directories, not directions. So क्या होता है, हम फोल्डर के अंदर फोल्डर भी होता है और फोल्डर के अंदर फाइल्स भी हो सकती हैं, तो इसके क्या बोलते हैं, हमारे को इसको फाइल सिस्टम बोलते हैं। कीप ट्रैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेज, स्टेटस ऑफ फाइल्स, द कलेक्टिव फैसिलिटीज आर नोन एज फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का काम है कि हर चीज़ का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना कि हमारे फोल्डर्स कितने हैं, फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स हैं, और जब किसी फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखते हैं उसमें बोलता है कि इसके अंदर इतने सब फोल्डर्स हैं और इतनी फाइल्स हैं, उनका इतना स्पेस है। तो सब सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। डिसाइड्स हु गेट्स द रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज की बात आएगी, अब कोई फाइल सेव करें तो उसको अगर मेमोरी अवेलेबल है हमारे सिस्टम में तो उसको सेव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, एरर दिखाएगा। और वही अगर हमने कोई फाइल डिलीट कर दी तो उसकी मेमोरी को फ्री कर देगा ताकि कोई हम नई फाइल सेव कर सकें उस स्पेस में। तो वही अलोकेशन और डीअलोकेशन तो हर चीज़ का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी, बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड, फिंगरप्रिंट स्कैनर और सिमिलर टेक्निक्स इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब हम बोलते सिस्टम पे पासवर्ड लगा दिया हमने, वो किस पे होता है, हमारा विंडोज़ का पासवर्ड है, तो क्या हुआ, हमारे सिस्टम को उसने सिक्योर कर दिया। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग डिले बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एंड रिस्पॉन्स, अगर कोई सर्विस हमने रिक्वेस्ट की उसमें डिले हो रहा है तो उन चीज़ों को वो डायग्नाइज करता है, मतलब चेक करता है क्या समस्या थी, किस कारण थी, ठीक है। जॉब अकाउंटिंग, कीप ट्रैक्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स, किस सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर कितने टाइम तक चला, किस यूजर ने यूज़ किया, सब चीज़ों का एक रिकॉर्ड रखता है। एयर डिटेक्टिंग एड्स, प्रोडक्शन ऑफ डंप्स,
ट्रेसेस, एरर मैसेजेस। तो कोई अगर एरर है, कोई डिबगिंग प्रॉब्लम है, कोई सॉफ्टवेयर क्रैश होता है तो बोलता है कि डू यू वांट टू सेंड द रिपोर्ट, येस और नो। ठीक है, और भी जितने अगर कोई एरर आ रहा है, कोई और प्रॉब्लम्स हैं, उन सब चीज़ों को ट्रेस करता है, उनको रिकॉर्ड रखता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, सॉफ्टवेयर्स और यूजर्स का कोऑर्डिनेशन रखता है कि कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर्स, अदर सॉफ्टवेयर टू वेरियस यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अगर कोई मल्टी यूजर सिस्टम है हमारा, किसको क्या लोकेट करना है, कौन से को क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से उन सब चीज़ का कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे ये है, एक जॉब 1 है, एक जॉब 2 है, एक जॉब, मल्टीपल जॉब्स हैं हमारी, उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि किसको सीपीयू कब और कितना टाइम तक देना है। तो हमने पहले पढ़ा था प्रोसेसर मैनेजमेंट में, तो उसका पिक्चर ये है आपकी। नाउ कम्स टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए लैंग्वेज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग ए सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। लैंग्वेज क्या करते हैं, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं अभी, नाउ वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश और हिंदी or in English nowadays a new term has arisen. So programming language is similar. When we talk to computer, we give some instruction, and all those instructions combine to form a language that we call programming language. So language is responsible for human system interaction, like we use English for human to human, हिंदी और आप आपस में बात करने के लिए हिंदी का उपयोग करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर से कुछ भी बात करेंगे ताकि ह्यूमन और कंप्यूटर में इंटरेक्शन हो सके, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिम्बल्स, करेक्टर्स, ग्रामर रूल्स। जैसे हम इंग्लिश में करते हैं तो हमारे पास क्या है, ABCD अल्फ़ाबेट्स हैं। फिर ग्रामेटिकल हमारे पास टेंसेज हैं, ग्रामर्स है, तो सारी चीज़ें हैं। ग्रामर के रूल्स हैं, कौन सा टेंस कब लगेगा, कौन सा पहले आए वर्ड्स, कौन से बाद में आएंगे, नाउन, प्रोनाउंस, वो चीज़ें हैं। तो सिमिलर टू दैट वी हैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज है तो उसमें ग्रामर भी होगी, सिंबल्स भी होंगे, करेक्टर्स भी होंगे। ठीक है, तो क्योंकि फाइंड क्या कर रहे हैं हम, वी आर कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर थ्रू ए लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ एग्जांपल्स ऑफ द लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर बेसिक, फोर्ट्रान, C++, C#, प्रोलॉग, जावा, PHP, देयर आर मेनी मोर, इवन हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज आर देयर। Now, programming languages are further divided into different categories: low level language, high level language. Low level language are machine language and assembly language. High level language are problem oriented, procedure oriented. So we will look at each and everyone one by one. Low level programming language, these are machine language. Computer hardware works at binary level. That computer केवल दो चीज़ों को समझता है, 0 और 1. 0 means low voltage, 1 means high voltage. These low and high can be defined as per the architecture of the system. It can only understand a binary based language, so it understands only either 0 or 1, 0 or 1. This binary based language is called machine language. It is very difficult to work with a machine language. इस लैंग्वेज के हिसाब से हमें काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें सब कुछ क्या होगा, हमें ए लिखना है, ए के लिए क्या होगा, कोरस्पोंडिंग 1 0 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 0 0 समथिंग करके पर्टिकुलर कोड बनेगा। ये स्टार्टिंग का कोड पूरा आपको डिनोट करे केवल एक अल्फ़ाबेट ऑफ लैंग्वेज, फिर सेकंड वाला एक नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। तो अगर ऐसे में पूरा, अगर अपने नाम को लिखने के लिए इतने कीवर्ड्स यूज़ करें, इतने 0 1 यूज़ करने पड़ेंगे, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। सो उसका समाधान क्या किया गया, व्हाट वाज द सॉल्यूशन टू दैट, वी डिस्कवर्ड द असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, वी गेव सम सिंबॉलिक कोड्स टू द इक्विवेलेंट बाइनरी कोड्स। हमने क्या किया, जैसे 1 0 0, इसको एक पर्टिकुलर कोड था, इसको हमने एक नया सिंबल दे दिया। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, CMP R1 R2, दिस इज कोड फॉर असेंबली लैंग्वेज। CMP मीन्स कंपेयर R1 एट R2, एड EQ R3 R1 R2, R1 और R2 को ऐड करके R3 में डाल दो, सेव कर दो उसका रिजल्ट। सब्ट्रैक्ट R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करो और R3 में आउटपुट सेव कर दो उसका। तो नाउ दिस इज आवर असेंबली लैंग्वेज कोड, these are machine language code, but both of these are difficult to learn. So then comes the high level programming language. High level programming language use symbols and words similar to English. जो हमारी नॉर्मल हम लैंग्वेज यूज करते हैं
उसके वर्ड्स को केवल डायरेक्ट यूज करेंगे हम और हमारा प्रोग्रामिंग हो जाएगी. सो वी कैन कम्युनिकेट विद आवर कंप्यूटर हार्डवेयर. हेंस क्योंकि इसमें इंग्लिश यूज कर रहे हैं, इट इज इजी टू लर्न. प्रोग्रामर नीड नॉट टू लर्न हार्डवेयर डिटेल्स. प्रोग्रामर को जो हार्डवेयर के लिए 0101 असेंबली कोड्स की याद करने की अब जरूरत नहीं है. हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हमारी? बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, जावा, PHP, पाइथन, सी शार्प, सी प्लस प्लस. ऑल दीज आर हाई लेवल लैंग्वेज. Now comes the fourth generation languages. These languages that consist of statements that are similar to statements in human language. Like जैसे हम आपस में बात करते हैं, अगर ऐसी बात करने से हमारी कंप्यूटर से बात हो जाए, that will be much easier. These are used mainly in database programming and scripting. For example, these language includes Perl, Python, Ruby, SQL, MATLAB, that is Matrix Laboratory. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. हमें कोई डेटाबेस, दिस इज डेटाबेस क्वेरी. सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल है, उसमें नेम नाम का एक फील्ड होगा, कॉलम होगा जिसको बोलेंगे हम. तो उसमें से हमें एक नाम चाहिए बच्चे का, तो हम क्या बोलेंगे? सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट. दिस इज वेरी सिमिलर टू एक पर्टिकुलर एक हमारा फील्ड टेबल है, उसमें से हमें एक पर्टिकुलर फील्ड चाहिए, हमने क्वेरी क्या की? सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट. दिस इज वेरी सिमिलर टू आवर नेचुरल लैंग्वेज. जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं, कोई भी क्लास में जाके हमने बोला सभी बच्चे अपना नाम बताओ. इफ एवरीवन टेल्स देयर नेम, दैट्स वेल एंड गुड. सिमिलरली क्या हुआ, इस क्वेरी को हमने किया तो क्या हुआ, तो स्टूडेंट्स का जो टेबल होगी उसमें सभी बच्चों के नाम हमारे सामने आ जाएंगे. तो दिस इज वेरी सिमिलर टू आवर नेचुरल लैंग्वेज. सो दिस इज फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज. Now these are the some language translators that we used while using our programming languages. Linker, like first we will take this, look at this diagram. Module 1, module 2, module 3. These are different modules we have. Modules means we divide our work into multiple parts. Like we have departments in a college, like we have different departments in companies, like accounting departments, finance department, loan department in a bank. Okay, like physics department, computer department, chemistry department in a college. But all these constitute to form a single college, single bank, or single company. So what we need a linker to combine all these modules to a final executable program. So similarly हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक डिपार्टमेंट वाइज बना रहे हैं, अलग अलग या अलग अलग पर्पज़ हमारे जो है, इसमें हमारा सारा फाइनेंशियल मोड ट्रांजेक्शन्स आएंगे, यहाँ पे सारे लोन अप्लाई का रिकॉर्ड आ जाएगा बैंक में, यहाँ पे कुछ और जो कार्रवाई होती हैं वो आ जाएंगे. उन सब को जोड़ के एक सिंगल सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक लिंकर चाहिए जो सभी को मॉड्यूल्स को ज्वाइंट करके एक सिंगल हमें हमारे लिए सॉफ्टवेयर रेडी कर दे. सो व्हाट इज लिंकर? लिंकर इज ए प्रोग्राम दैट कंबाइंस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स टू फॉर्म एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम. मल्टीपल मॉड्यूल्स को ज्वाइन करके एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम आउटपुट कर देगा. ए सॉफ्टवेयर ऑफन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सोर्स प्रोग्राम्स मॉड्यूल्स which should be contained before execution. मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सारे एक साथ जोड़ देना चाहिए बिफोर एग्जीक्यूशन, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं वो. ईच मॉड्यूल ऑफ ए सॉफ्टवेयर compiled separately to produce object programs. Linker will combine all these object modules and give loader to load into the memory for execution. जब ये मेमोरी की बात कर रहे हैं तो मतलब रैम में, लोडर क्या करेगा, उसको मेन मेमोरी में लोड कर देगा एग्जीक्यूशन के लिए. The subprogram in one program can be referenced by subprogram in another program through symbols. The variable and functions which use external keywords for global declaration are declared in one program. क्योंकि क्या होता है, कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर्ड हैं वो इसमें यूज कर रखे हैं उन्होंने, कुछ यहाँ पे डिक्लेयर्ड हैं वो इसमें यूज कर रखे हैं, तो तब तक इन सबको जोड़ेंगे नहीं तो हमारा पूरा प्रोग्राम फंक्शनल नहीं होगा. सो दैट वी नीड ए लिंकर. वो जब फाइनली हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम रेडी है, देन दैट कैन बी लोडेड इनटू मेन मेमोरी बाय लोडर. नेक्स्ट टॉपिक इज लोडर. लोडर जैसे मान नॉर्मली जैसे लोडर है, ये क्या कर रहा है, दिस इज लोडिंग ए कंटेंट इनटू दिस ट्रक में सामान डाल रहा है. तो लोडर इज ए प्रोग्राम विच एक्सेप्ट द इनपुट एज लिंक्ड मॉड्यूल्स. सारे लिंक्ड मॉड्यूल्स में थे, एक टाइप से हमने जोड़ दिए. इन सबको क्या करेगा, लोड इनटू द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन.
क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए कुछ भी जो भी हमें एग्जीक्यूट करना कंप्यूटर में वो हमारा मेन मेमोरी से ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मेन मेमोरी में लोड करेंगे उसको, वहाँ से फिर आगे जाएगा सीपीयू के पास। लोडर्स लोड और कॉपीज द प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। लोडर्स कैन आल्सो रिप्लेस वर्चुअल एड्रेस विद फिजिकल एड्रेस। There is no much difference between jobs of linker and loader. Basically, they task overlap. तो दोनों एक कुछ काम हैं जो ओवरलैप करते हैं, कॉमन है विद ईच अदर। लोडर कैन परफॉर्म बोथ वर्क ऑफ लिंकिंग एंड लोडिंग। तो लिंकर का काम तो केवल प्रोग्राम मॉड्यूल्स को जोड़ने का है, लिंक मींस लिंक क्रिएट करना, लेकिन लोडर क्या कर सकता है, वो लोडरिंग का काम तो कर ही सकता है, साथ में वो लिंकिंग का काम भी कर सकता है। नेक्स्ट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, इट इज ए ट्रांसलेटर विच टेक्स इनपुट हाई लेवल लैंग्वेज एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज मशीन और असेंबली लैंग्वेज। एक नॉर्मल हमने प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज में, कंपाइलर क्या करेगा, उसको कोरस्पॉन्डिंग मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। कंपाइलर इज मोर इंटेलिजेंट देन एन असेंबलर, इट चेक्स ऑल काइंड्स ऑफ लिमिट्स, रेंज एंड एरर। असेंबलर जो होता है हमारा, हम आगे पढ़ेंगे, असेंबलर क्या, असेंबली लैंग्वेज को जो रीड करेगा वो कौन होगा, असेंबलर। उससे ज़्यादा स्मार्ट होता है। इसमें क्या होता है, लिमिट्स हैं, रेंज हैं, वो एरर्स हैं, उन सबको चेक करता है। असेंबलर ये चीज़ें चेक नहीं करता। बट इट्स प्रोग्राम रन टाइम इज मोर एंड ऑक्यूपाइज लार्जर पार्ट ऑफ मेमोरी। इसमें क्या होता है, लार्जर पार्ट ऑफ मेमोरी एक्सेप्ट करता है। इट हैज स्लो स्पीड बिकॉज कंपाइलर गोज थ्रू द एंटायर प्रोग्राम एंड देन ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। ये पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा, उसमें लिमिट्स क्या है, कोई रेंज आउट ऑफ रेंज तो नहीं जा रहा, कोई वेरिएबल, कोई एरर तो नहीं है, सभी चीज़ों को चेक करेगा, उसके बाद उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देगा। सो इट इज़ क्वाइट स्लो। ओके, सो सोर्स प्रोग्राम will go to compiler and we will get object program. Object program is also known as it could be either machine code or a assembly code depending upon the compiler. Compiler will be different for each language. There will be compiler for C language, C++ language, Java, .NET. Every language will have their own compiler. Next is interpreter. An interpreter translates high level language code into machine code instruction by instruction. In compiler we are translating the complete program in one go, but in translate interpreter we are translating by line or instruction by instruction. The CPU executes each instruction before interpreter moves on to translate the next instruction. Okay, it translates only one statement of program at a time. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। Interpreters more often than not smaller than compilers, so these are simpler as compared to compilers. These are the difference between compiler and interpreter. Compilers scan the entire program and translate the whole of it into a machine code at once. So ये क्या करेगा, सारे को एक साथ स्कैन करेगा और आपके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। इंटरप्रेट जस्ट एक स्टेटमेंट करेगा, एक एक स्टेटमेंट करके मशीन कोड में करेगा ये वन बाय वन। A compiler takes a lot of time to analyze the source code. However, the overall time taken to execute the process is much faster. एनालाइजिंग के टाइम क्या है, मेमोरी चेक कर रहा है, लिमिट चेक कर रहा है, एरर चेक कर रहा है, तो वन बाय वन कर रहा है, लेकिन बाद में क्या ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट करना काफ़ी फास्ट हो जाएगा। इंटरप्रेटर टेक्स लेस टाइम टू एनालाइज, इसका स्टार्टिंग तो ईजी हुआ लेकिन ओवरऑल टाइम इसका ज़्यादा हो जाएगा। एक कंपाइलर जनरेट्स एरर मैसेज ओनली आफ्टर इट स्कैन्स द कंप्लीट प्रोग्राम एंड हेंस डीबगिंग इज रिलेटिवली हार्डर व्हाइल वर्किंग विद द कंपाइलर। डीबगिंग मतलब सारे एरर्स आपको पूरा प्रोग्राम चेक होने के बाद पता चलेंगे यार कि इसमें ये एरर है, तो आपको वन बाय वन दोबारा गो थ्रू होना पड़ेगा। बट इंटरप्रेटर में क्या होता है, कीप ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम कंटिन्यूसली टिल द फर्स्ट एरर इज कन्फ्रंटेड। जैसे ही पहले एरर मिलेगा वहीं पे रुक जाएगा। इफ एरर इज स्पॉटेड इट स्टॉप्स वर्किंग एंड हेंस डीबगिंग बिकम्स इजी। डीबगिंग मतलब लोकेटिंग द एरर, कि एरर कहाँ पे है वो लोकेट करना को बोलते हैं डीबगिंग। So it is a very useful task to find the errors in a program. Okay, so interpreter में debugging easy होती है, इसमें debugging थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये faster होता है, slower होता है, ये सारा एक साथ प्रोग्राम में स्कैन करता है, ये लाइन बाय लाइन स्कैन करता है। कंपाइलर्स कौन सी लैंग्वेज के होते हैं, C++, C#, काफ़ी और ज़्यादा भी हैं, पाइथन, पर्ल,
Ruby, Snowball, MATLAB, all these have interpreters. Assembler. An assembler is a program that takes basic computer instruction and converts them into a pattern of bits that computer processor can use to perform its basic operations. Assembler क्या था? सिंबॉलिक असेंबली लैंग्वेज थी हमारी, सिंबॉलिक कोड्स के साथ उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में, दैट इज जीरो एंड वंस, आइदर जीरो और वन, सो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा. सम पीपल कॉल दिस इंस्ट्रक्शन असेंबलर लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी जिसको वर्क काम करेगा? असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज का क्या होगा? असेंबलर, जो कि उसको डिकोड करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा. Now we have classification of computers. We can classify computer in different ways by size, function, and processing capacity. Micro. So this is the order of our working. Like size of our computer is increasing in this order. Micro computer have minimum size, minimum functionalities, and minimum processing power. Then after that mini computer, then more powerful mainframe, and the most powerful supercomputer. Microcomputer. Microcomputer is small and relatively inexpensive computers with the microprocessor as its CPU. It includes a microprocessor, memory, and minimal input-output circuitry mounted on a single PCB, single printed circuit board. Tablets, smartwatches, and these basic starting level computers all comes under microcomputer. Next is mini computer. Mini computer is small and general purpose computer. It is more expensive than microcomputer. उनसे ज़्यादा महंगे होंगे. More storage capacity, more speed. It is designed to simultaneously handle needs of multiple users. So these are like tower servers. So these can handle multiple users at the same time, and these have more storage capacity and power as compared to our earlier microcomputers. Mainframe computer. These are commonly called as big iron. They are usually used by big organizations for bulk data processing such as statistics, census data processing, transaction processing. These are widely used as servers as these have higher processing capabilities as compared to other systems. So these are used by big companies like banking, like other financial transactions, Paytm, Bhim UPI. All these are maybe used because these have large transactions on daily basis. So they need more power, more capability, more storage. Okay, more reliability. Most of these mainframe architectures were established in 1960s. Research and development worked continuously over the years, and now they are much better in size and capacity and efficiency. These are examples of these are IBM Z series, System Z9, System Z10 servers. So these are mostly server grade systems that have far more capability as compared to our mini computer and microcomputers. So this is mainframe computer. Now we have the finally last one, supercomputer. Supercomputer are the most high performing systems. Supercomputer is a computer with high level of performance compared to a general purpose computer. Actual performance of supercomputer is measured in floating point operations per second instead of MIPS. MIPS means millions of instructions per second. So normal computer executes millions of instructions per second. These have floating point operations per second. All of the world's fastest 500 supercomputers run on Linux based operating system. So Linux operating system is most widely used on high performing systems. Supercomputers actually play an important role in the field of computation, used for intensive computation tasks in the field of quantum mechanics, weather forecasting, climate research, oil and gas exploration, molecular modeling, and physical simulations. And there are many more applications areas for them. Some of the examples are Param. This is the Indian series of supercomputers. There are around 75 supercomputers in India. Jaguar, Roadrunner. Let's check this. This is a Param Shivai supercomputer at IIT BHU, IIT Banaras Hindu University, Varanasi. So this is a supercomputer, means multiple mainframe computers are combined together to form a
single computer. So it is quite large, quite not very large. So you can see all these are even single rack contain multiples of mini computers, even 10 to 20 of mini computers on layer manner. So this is the classification of our computers. So we have completed our second lecture. In third lecture we will see more. If you have any question query, then you can put in the comment box.